اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا۔ اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہیڈ لائن دیکھ کر اور سرخیاں دیکھ کر آپ سمجھ گئے ہوگی کہ میں کس عنوان پر بات کرنے والا ہوں۔ جی ہاں، بہت مختصر بات کرنے والا ہوں، اس لیے کہ آج جمعہ بھی ہے اور 12:05 ہو چکے ہیں اور مجھے جمعہ کے خطاب کے لیے بھی جانا ہے عیدگاہ میں، عیدگاہ جلگاؤں میں خطاب کے لیے بھی جانا ہے، خطبہ اور نماز بھی میرے ذمے ہیں۔ آئیے آج ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد پر۔ جی ہاں، ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ سرزمین ہندوستان کے لیے تاریخی شخصیات کا جنم دن، تاریخی شخصیات کا جنم دن، یہ بھی بڑا عجیب اتفاق ہے۔ 9 نومبر کو میں خود تعلیمی شہر پونا میں تھا اور 9 نومبر آپ جانتے ہیں کہ مرحوم ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یوم پیدائش ہے، اور اسی 9 نومبر کو اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب پوری دنیا میں یوم اردو، عالمی اردو دن کے طور پر منایا جاتا ہے 9 نومبر۔ تو 9 تاریخ کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش، ایسے ہی 10 نومبر کو یعنی گزشتہ کل جو 10 تاریخ گئی ہے، 10 نومبر کو شیر میسور حضرت شہید ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد آزادی، مجاہد اول، بھارت کے شہ سوار، بلکہ مجاہد اول، تو 10 نومبر کو یوم بہادری، جرأت اور شجاعت کے نام پر یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ جب تک ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ زندہ رہے اس وقت تک انگریزوں کی ہمت نہیں ہوئی یہ کہنے کی کہ بھارت ہمارا ہے، لیکن جس دن انگریزوں کو ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کا مکمل یقین ہو گیا، اس وقت انگریز نے کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہوا ہے۔ تو بہادری کا دن 10 نومبر، اور آج 11 نومبر کو یوم پیدائش ہے مولانا ابوالکلام آزاد کا۔ جی ہاں، 11 نومبر 1888 میں دنیا کے سب سے بابرکت، مقدس اور پاکیزہ شہر مکۃ المکرمہ سعودی عربیہ میں حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش ہوئی، اور 11 نومبر کو مولانا ابوالکلام آزاد کی یوم پیدائش سے نسبت کرتے ہوئے 11 نومبر کو یوم تعلیم پرجوش انداز میں پورے ملک میں منایا جاتا ہے۔ جی ہاں، بس اسی پر اب تھوڑی سی بات کر لوں گا۔ جی، مولانا ابوالکلام آزاد، ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد ملک کے پہلے وزیر تعلیم، ایجوکیشن منسٹر رہے ہیں، اور مولانا ابوالکلام آزاد کی علمی شخصیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ بہترین مفسر قرآن، اعلیٰ علم رکھنے والے عالم دین، قرآن کے بہترین مفسر، اور انگریزی زبان کا بھی اتنا زبردست علم کہ مولانا ابوالکلام آزاد اگر انگریزی بولے
तो अंग्रेज डिक्शनरी खोले, इतना जबरदस्त अंग्रेजी का भी इल्म रखने वाले बेहतरीन इंशा पर्दाज अदीब और मुजाहिदीन आज़ादी में अव्वल सफ़ों में जिन्हें शुमार किया जाता है वो है हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और उनकी यौम पैदाइश के दिन को यौम तालीम के तौर पर मनाया जाता है। इसलिए मैं इन 3 दिनों के मुताल्लिक से इतना ही कहूंगा कि मिल्लत को अल्लामा इकबाल की फिक्र, जो इकबाल की फिक्र थी, मिल्लत को, आज पूरी कौम को इकबाल की फिक्र, टीपू सुल्तान की बहादुरी और मौलाना आज़ाद की सोच की जरूरत है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो माहिर तालीम थे और मुल्क के पहले वजीर तालीम भी रहे हैं, आप जानते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का इस मुल्क पर बड़ा एहसान है, क्योंकि मुजाहिदीन आज़ादी के सफ़े अव्वल में हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम भी आता है, जिन्होंने गांधी जी के फिक्र और गांधी जी की सोच और गांधी जी के विचारों को फैलाने का काम किया और अंग्रेज़ों से मुकाबला करने का काम किया। जेल की सऊबतें और जेल की तकलीफ़ें भी बर्दाश्त की और उन्हें उनकी यौम पैदाइश के यौम तालीम के नाम पर मनाया जाता है और मनाया जाना चाहिए। लेकिन एक पैगाम देकर अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक इल्मी शख्सियत थे, बेहतरीन कलमकार, अदीब, इंशा पर्दाज, बेहतरीन जर्नलिस्ट, सहाफ़ी भी थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का अल हिलाल और अल बलाग, अल हिलाल और अल बलाग, ये मशहूर मारूफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सहाफ़ती नक़ूश है। मौलाना के ये 2 बड़े पेपर थे जो उस वक्त जारी थे, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मुल्क से मोहब्बत, मुल्क की एकता, मुल्क के अमन पर कलम चलाते थे और लिखते थे, बेहतरीन अंदाज में एकता मोहब्बत का पैगाम देते थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई का माहौल बनाते थे। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश की यौम तालीम के तौर पर मनाया जाता है। इसलिए यही पैगाम दूंगा कि दोस्तों, जब तक कि तालीम की तरफ, एजुकेशन की तरफ, शिक्षण की तरफ हमारे कदम नहीं बढ़ेंगे, हम तरक्की नहीं कर सकते। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अल्लाह ने कुरान पाक में 6666 आयतें नाजिल की, लेकिन उन तमाम आयतों में रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, सदका, खैरात किसी चीज़ का हुक्म पहले नहीं दिया गया। पहले हुक्म दिया गया है इक़रा, पढ़ो, पढ़ने का। तो हमें चाहिए कि हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से अगर मोहब्बत करते हैं और कुरान मुक़द्दस को अल्लाह की आखिरी किताब मानते हैं, बड़ी किताब मानते हैं, अहम किताब मानते हैं, तो फिर हम इल्म की तरफ अपने कदम को बढ़ाए। और जिस तरीके से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने मुल्क की खिदमत की, मुल्क की सेवा की, इंसानियत की खिदमत की, बेहतरीन आलिम दीन बने, बेहतरीन मुफस्सिर कुरान बने, बेहतरीन मुजाहिद आज़ादी बने और आला पैमाने के आप सहाफ़ी रहे हैं। ऐसे ही बस मैं कौम को पैगाम दूंगा कि हम कुरान का भी इल्म हासिल करे, दुनिया का भी इल्म हासिल करे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक मौलाना थे, लेकिन एक सियासी कद आवर नेता थे। ये इसलिए जानबूझकर कह रहा हूँ कि आज अगर कोई मौलाना हो और सियासत की तरफ आए तो हमारी जाहिल कौम उसे सियासी मुल्ला या सियासी मौलाना कह के उसे इमामत के मुसल्ले पर से भी हटा देती है। ये हमारी जहालत का आला नमूना है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक बेहतरीन सियासी नेता भी थे, कायद भी थे, लीडर भी थे, बेहतरीन आलिम भी थे, बेहतरीन मुफस्सिर कुरान थे, एक सहाफ़ी भी थे, पत्रकार भी थे। तो एक मौलाना वो लीडर भी बन सकता है, सहाफ़त में, जर्नलिज्म में, पत्रकारिता में भी बेहतरीन अंदाज में काम कर सकता है और ये कोई नाजायज़ और हराम नहीं है। और वो एक बेहतरीन लीडर, कायद और सियासी नेता बनकर भी उभर सकता है। हमें अपने दिमाग को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तरह वुसअत देते हुए और अपने दिमाग को वसी करते हुए एक आलिम दीन के साथ साथ हमें इन तमाम सिफात का हामिल भी होना ज़रूरी है। और आखिरी जुमला ये भी कहूँगा कि अगर हमारी कौम का कायद मस्जिद का इमाम भी होगा, बेहतरीन सहाफ़ी और पत्रकार भी होगा, बेहतरीन लीडर और सियासी कायद भी होगा, तो इंशाअल्लाह यह कौम आगे ज़रूर बढ़ेगी। खैर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1888 11 नवंबर को मक्कतुल मुकर्रमा में पैदा हुए और 22 फरवरी 1928
1958 को दिल्ली में हज़रत मौलाना का इंतकाल हुआ और वहीं पर आप दफन हैं। हम दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और अल्लाह उनकी खिदमत को शर्फ कबूलियत से नवाज कर उन्हें इसका बेहतर बदला और सिला नसीब फरमाए। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। दाद खाज खुजली का जड़ से इलाज डॉक्टर शेख नाजिम से कांटेक्ट कीजिए 8983547069 पर। जोड़ों का दर्द, पाइल्स, बवासीर, एसिडिटी, वजन का कम करना, गुर्दों और मसानों की पथरी, गुप्त रोग, बालों का झड़ना और सफेद होना, इन तमाम बीमारियों के इलाज के लिए हिंदुस्तान आयुर्वेदिक सेंटर जलगांव। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।